क्या पढ़ा था हमने, क्या सीखा था पिछले लेसन में? Oh, in der Lesson The haben conjunctions. wir die Conjugationen gelernt. sehr gut, Zishan, sehr gut, Fatma. Hmm, Ordinal, Conjectua और subordinal Conjectua. sehr gut, sehr gut. Wir haben Konjunktionen gesehen. हमने conjunctions को देखा und wir haben gesehen, हमने ये भी देखा कि wie man Konjunktionen oder Konnektoren im Alltagsgespräch benutzt, कि daily life conversation में connectors या conjunctions का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. Konjunktionen bedeutet conjunctions oder या फिर nennt man auch Konnektoren. इनको Konnektoren यानी connectors भी कहा जाता है. Konjunktionen und Konnektoren sind ganz wichtig und benutzt man dieses Thema meistens im Alltagsgespräch. Meistens का मतलब है सबसे ज्यादा, mostly im Alltagsgespräch यानी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में इस टॉपिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है. Im Deutschen German में gibt es viele Konjunktionen. We have a lot of conjunctions oder Konnektoren. We have a lot of connectors. Aber, लेकिन, was sind Konjunktionen? What are conjunctions? ये conjunctions या connectors होते क्या है? Wer antwortet? कौन बताएगा? सर जो दो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं. Sehr gut, sehr gut. Hmm, Ist Sabah, verbinden zwei Sätze. sehr gut, Sabah, sehr gut. Verbinden. Verbinden bedeutet to connect. Konnektoren verbinden zwei Sätze zusammen. Connectors combine or connect two sentences together. जो connectors होते हैं उनका ये काम होता है कि वो दो जुमलों को आपस में connect करते हैं. Konnektoren oder Konjunktionen sind einfache Wörter im Deutschen. ये जर्मन जबान के बहुत सिंपल से कुछ वर्ड्स होते हैं, die zwei Sätze zusammen verbinden, जो दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करते हैं. Aber, लेकिन, haben wir zwei Arten von Konjunktionen in der deutschen Grammatik. German Grammar में we have two types of conjunctions. दो तरह की conjunctions होती हैं. Koordinierende Konjunktionen यानी coordinating conjunctions. एक टाइप है conjunctions की जो कहलाती है coordinating conjunctions. Und unterordnende Konjunktion यानी subordinating conjunctions. दूसरी टाइप है conjunctions की जो कहलाती है subordinating conjunctions. Haben wir zwei Konjunktionen. दो तरह की conjunctions की types होती हैं. Das haben wir im Detail gesehen. ये हमने बहुत डिटेल में देखा पिछले लेसन में कि conjunctions क्या होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं conjunctions की, और wie man diese Konjunktionen im Alltagsgespräch benutzt. In Conjunctions को Daily Life Conversation में कैसे use किया जाता है. Wenn Sie die letzte Vorlesung verpasst haben, können Sie Recorded Session im Google Drive anschauen. Na? If you missed the last lesson, अगर तो पिछला lesson आपने miss कर दिया था, you can watch the recorded one. Okay? Aber wiederholen wir schneller. तेजी के साथ एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं was wir schon gelernt haben, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Wer möchte antworten? कौन बताना चाहेगा? Was sind coordinating conjunctions? यानी coordinating conjunctions क्या होती हैं? हम्म, सर ऐसे कंजंक्शन तो जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाती है. दो independent clauses को मिलाती हैं. Sehr gut. दुर्याब. When am I audible? हम्म, Okay. When we have zwei Hauptsatz verbinden, then wir benutzen coordinating connections. Sehr gut, sehr gut. Fatma, hast du noch eine Erklärung?
सर सेम यही है, दो ऑब्जेक्ट को जो मिलाने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूनिट। Sehr gut. Im Deutschen haben wir in total 5 Coordinating Konnektoren। 5 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स क्या होते हैं? Diese Konnektoren verbinden zwei Hauptsätze। ये दो Hauptsatz यानी मेन क्लॉज को आपस में कनेक्ट करते हैं। Und pass auf, pay attention, der Satzbau bleibt gleich। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जुमलों का वो हमेशा सेम रहता है। Das wird nie ändert, वो कभी भी चेंज नहीं होता। Coordinating Connectors zum Beispiel und, oder, aber, denn, sondern haben wir auch viele Beispielsätze gesehen, हमने बहुत सारे जुमलों को भी देखा। Zum Beispiel ich kaufe Brot, मैं ब्रेड खरीदता हूँ या मैं ब्रेड खरीद रहा हूँ। Und du kaufst Käse, तुम चीज खरीद रहे हो। Dieser Satz hat zwei Teile। The sentence has two parts। Und verbindet beide Sätze zusammen। Und ने क्या किया कि इन दोनों जुमलों को आपस में मिला दिया। Ich bin müde, मैं थका हुआ हूँ। Aber, लेकिन, ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ। Er kocht heute, वो आज खाना बनाएगा। Oder, या फिर er bestellt Essen, वो खाना ऑर्डर करेगा। Sondern bedeutet rather या बल्कि। Zum Beispiel ich trinke keinen Kaffee, मैं कोई कॉफी नहीं पीता। Sondern, बल्कि, ich trinke Tee, मैं चाय पीता हूँ। Dann subordinating conjunctions। Was sind subordinating oder unterordnende Konjunktionen? ये subordinating conjunctions क्या होती हैं? Sag mir schneller, तेजी से बताएं। फहाद, मिर्जा अली, हाफिज बिलाल, किधर गए सब? मुर्तजा, वाइज, जीशान, Sir, हमजा। these conjunction joins independent clause and dependent clause. Wie sagt man auf Deutsch? जर्मन में कैसे कहा जाएगा? सर Hauptstadt plus Nebenstadt। Nebensaat. Hauptsatz und Nebensatz। Sabah Javed, Es verbinden Hauptsatz und Nebensatz und im Nebensatz Verb steht am Ende. Verb steht immer am Ende। sehr gut, sehr gut। Dann Fatma, सर ऑब्जेक्ट और नेबल को फॉरबिडन करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कनेक्ट हुआ। sehr gut। Okay, Mirza, kein Problem. Du kannst in den Chat schreiben, na? Wenn du irgendwelche Fragen hast, कोई भी question हो आप chat में लिख देना Mirza, okay? Kein Problem। Sehr gut। Subordinating Conjunctions oder Subordinating Konnektoren। Diese Konnektoren verbinden einen Hauptsatz mit einem Nebensatz। ये ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जो एक हाउटजाट्स यानी मेन क्लॉज को एक नेबेनजाट्स यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ कनेक्ट करते हैं। Und im Deutschen haben wir viele subordinating Konnektoren। जर्मन में बहुत सारे subordinating connectors होते हैं। Aber, लेकिन, was ist der Unterschied zwischen Hauptsatz und Nebensatz? ये Hauptsatz में और Nebensatz में क्या फर्क है? हम्म, ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और नेबल सेट्स होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है उसको किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन नेबल सेट को क्रिएट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। Sehr gut, Fatma, sehr gut। Hauptsatz, सर Hamza, सर एक सवाल। सर मैं ये बोल रहा था कि हाउस आर्ट्स में जो वर्ब होता है वो बीच में आता है और मटन आर्ट्स में लास्ट। sehr gut, Hamza, sehr gut। In einem Hauptsatz, एक Hauptsatz में steht das Verb immer auf Position 2। जो Hauptsatz है उसमें वर्ब की पोजीशन हमेशा क्या होती है? सेकंड होती है। Verb steht immer auf Position 2। जबकि in einem Nebensatz में das Verb steht immer am Ende। जो वर्ब होता है वो हमेशा जुमले के आखिर में होता है।
Und ganz wichtig, बहुत ज़रूरी, Hauptsatz heißt independent clause. Hauptsatz को इंग्लिश में independent clause यानी main clause कहा जाता है. Hauptsatz braucht keinen Nebensatz. Hauptsatz doesn't need a Nebensatz. Hauptsatz को किसी Nebensatz की ज़रूरत नहीं होती है. It can stand alone. इसको अकेला भी लिखा जा सकता है. Zum Beispiel, for example, wir lernen Deutsch. हम जर्मन सीख रहे हैं. Hauptsatz. Ich esse Abendessen. मैं रात का खाना खा रहा हूँ. Hauptsatz. Ich gehe zur Arbeit. मैं काम पर जा रहा हूँ. Hauptsatz. Alle Sätze sind Hauptsätze. ये जितने भी sentences हैं वो सब क्या हैं? Hauptsatz. Aber was ist Nebensatz? ये Nebensatz क्या होता है? Nebensatz heißt dependent clause of English. Nebensatz को इंग्लिश में dependent clause कहा जाता है. It depends on Hauptsatz, जो कि Hauptsatz यानी main clause पे depend करता है. Nebensatz braucht immer einen Hauptsatz. Nebensatz को हमेशा एक Hauptsatz की जरूरत होती है. Das kann nicht alleine schreiben oder können. ये कभी भी अकेला नहीं लिखा जा सकता, ये अकेला नहीं आ सकता. Nebensatz kommt immer mit einem Hauptsatz. जो Nebensatz है वो हमेशा अपने साथ एक Hauptsatz यानी मेन क्लॉज को कैरी करता है. Und ganz wichtig, बहुत ज़रूरी, in einem Nebensatz, Nebensatz में das Verb steht immer am Ende. जो वर्ब है, conjugated verb, वो हमेशा जुमले के इख्तिताम पर रहता है. Zum Beispiel, ich in Berlin wohne. Ich in Berlin wohne. मैं बर्लिन में रहता हूँ. Auch wichtig zu wissen, ये भी जानना ज़रूरी है कि Nebensatz kommt immer mit einem Konnektor. Nebensatz अपने साथ हमेशा एक कनेक्टर को कैरी करता है. Zuerst सबसे पहले kommt ein Konnektor. सबसे पहले एक कनेक्टर आता है. Dann schreiben wir einen Nebensatz. उसके बाद हम Nebensatz को लिखते हैं. Aber Konnektor. Welcher Konnektor? कौन सा कनेक्टर आता है Nebensatz से पहले? वो कनेक्टर कौन से होते हैं जो Nebensatz से पहले आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स याद रखिएगा. जर्मन जबान में im Deutschen, जर्मन में gibt es viele Konnektoren. There are a lot of connectors. जर्मन जबान में तो बहुत सारे कनेक्टर्स हैं. Und, aber, oder, viele Konnektoren ना बहुत से कनेक्टर्स हैं. लेकिन ये सब कनेक्टर्स नेबेनजार्ट्स को फॉलो नहीं करते. ऐसे कनेक्टर्स जो नेबेनजार्ट्स को फॉलो करते हैं उन कनेक्टर्स को क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स. सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स. Klar? Und alle subordinating Konnektoren haben wir schon gesehen. जितने भी subordinating connectors हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. हमजा, hast du noch Frage, कोई क्वेश्चन? यस. ये सर सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स में ऊपर अगर आप जाएं स्लाइड, WENN, When? वेन, इसका मतलब वेन है और साथ में इसका मतलब इफ भी है. यस. इसका मतलब सिर्फ if है, इसका मतलब when ओके, नहीं है. ठीक. तो एक आता है WANN, वन. वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में है या वो कुछ और डिफरेंट है? वन का मतलब होता है when. Das ओके. bedeutet कब. इसका मतलब क्या है? कब. Und das ist kein Konnektor. ये कोई कनेक्टर है ही नहीं हमजा. ये तो एक वे वर्ड यानी W वर्ड है जो कि सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है. Wann kommst du, हमजा? तुम कब आ रहे हो? ओके. Wann kommt der Zug? ट्रेन कब आ रही है? Klar? कब? ला. When.
ओके, ये जो वन है ये कोई कनेक्टर नहीं है हमजा, वेन कनेक्टर है, वेन। ओके, ओके sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Haben wir auch viele Beispielsätze gesehen. हमने और भी बहुत से जुमलों को देखा. Wiederholen wir schneller. तेजी से रिवाइज कर लेते हैं. Ich bin müde. Ist das ein Hauptsatz oder Nebensatz? ये Hauptsatz है कि Nebensatz है? ऑब्जेक्ट्स Hauptsache. Hauptsatz. Warum? ये Hauptsatz क्यों है? वर्ब क्योंकि की वर्ब इसमें पोजीशन थर्ड वर्ब पोजीशन पे। दरमियान में आ रहा है. वर्ब सेकंड पोजीशन पर है. पहली निशानी तो ये है कि ये Hauptsatz है. दूसरी निशानी क्या? Kein इंडिपेंडेंट connector. Kein connector. No any connector. इसमें कोई subordinating connector भी नहीं है. Okay, very good. Done. सर इज देयर हमजा. सिमिलर सर नेबेंजार्ट से सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें इंग्लिश या उर्दू में मिलता है कोई एग्जांपल? नहीं, इंग्लिश में डिपेंडेंट क्लॉज होते तो हैं लेकिन वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश में चेंज नहीं होता, जबकि जर्मन जबान में नेबेनजार्ट्स में स्ट्रक्चर सेंटेंस का चेंज हो जाता है. ओके, ओके सर. और स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, कौन बताएगा? क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं नेबेनजार्ट्स में? व्याप वर्ब लास्ट में एंड आ पे जाएगा. चला जाता है. Sehr सब्जेक्ट gut, ऑब्जेक्ट देन व्याप. sehr gut. Das Verb oder ein konjugiertes Verb steht immer am Ende in einem Nebensatz. Nebensatz का ये रूल है कि उस जुमले में जो वर्ब होता है वो हमेशा जुमले के इख्तिताम पर होता है, आखिर में होता है. Und was kommt zuerst? सबसे पहले क्या आता है नेबेनजार्ट्स में? सबऑर्डिनेटिंग कनेक्ट हुआ. Konnektor. Das ist ein Konnektor. ये है एक कनेक्टर. Weil. Weil bedeutet because. इसका क्या मतलब होता है? Because ना. Ist es ein Nebensatz oder Hauptsatz? ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये Nebensatz है या Hauptsatz है? नेबेंजेट. Nebensatz. Sehr gut. Wir haben auch viele Beispiele gesehen. हमने और बहुत सारी Examples को देखा. Zum Beispiel wiederholen wir noch einmal. तेजी से रिवाइज कर लेते हैं. Ich lerne Deutsch. Hauptsatz. Ich wohne in Deutschland. Hauptsatz. ऑब्जेक्ट Weil. Weil ist ein Connector. Weil क्या है? एक कनेक्टर है सबऑर्डिनेटिंग. जो कि subordinating connector कहलाता है. Jetzt अब verbinden wir beide Sätze mit weil. अब मैं इन beide Sätze यानी दोनों जुमलों को while से कनेक्ट करूंगा. मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ. Ich लर्निंग lerne Deutsch, डॉइच. hm, डॉइच. वाइल weil Ich in इश Deutschland. ich डॉइचलैंड wohnen. in Deutschland wohne. Warum geht wohne am Ende? ये wohne आखिर में क्यों चला गया? बिकॉज इट्स नेबेंजेट्स. नेबेनजार्ट्स. क्योंकि ये जो जुमला है, ये जो जार्ट्स है वो एक नेबेनजार्ट्स यानी डिपेंडेंट क्लॉज है. लेकिन ये जुमला डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बन गया? कनेक्टर की वजह से। की वजह से कनेक्टर की वजह कनेक्टर से. सबऑर्डिनेटली कनेक्ट हुआ की वजह से. वेगन कनेक्टवा. बिकॉज ऑफ कनेक्टर. कनेक्टर की वजह से. इस कनेक्टर ने इस जुमले को नेबेनजार्ट्स बना दिया. अगर ये कनेक्टर यहाँ नहीं होता तो ये जुमला Hauptsatz रहता, लेकिन इस जुमले को कनेक्टर ने क्या बना दिया? Nebensatz. Sehr gut. Ich gehe nach Hause. Das ist ein Hauptsatz. ये मेन क्लॉज है. Ich bin müde. मैं थका हुआ हूँ. Hauptsatz. Verbinden wir beide Sätze mit weil. अब इन दोनों जुमलों को while से कैसे कनेक्ट किया जाए? Ich gehe nach Hause Ich würde bin. nach Hause. मैं weil घर जा रहा हूँ. While Weil ich क्योंकि müde bin. müde bin. Ich bin. ich müde bin. क्योंकि मैं थका हूँ. Sehr gut. Er bleibt zu Hause. वो घर पर है. Hauptsatz. Er ist krank. वो बीमार है. Hauptsatz. Verbinden wir beide Sätze mit weil. अब इन दोनों जुमलों को while से कैसे कनेक्ट किया जाए?
Er bleibt out zu Haus, weil er well krank er ist. krank ist. हाउजे Krank वाइल ist. क्योंकि या krankest क्योंकि वो बीमार है sehr gut आई होप कि हाँ अब किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी नेबेनजार्ट्स में कि was ist ein Nebensatz Nebensatz क्या होता है was ist ein Next. Hauptsatz एक Hauptsatz क्या होता है und was ist der Unterschied zwischen beide इन दोनों में फर्क क्या है klar verstehen Alles Sie klar. Ja, das. sehr gut jetzt fangen wir mit einem neuen Thema आज का जो नया टॉपिक है उसको शुरू करते हैं आई होप कि जो रिवीजन हमने किया उससे काफ़ी चीज़ें सबको हाँ क्लियर होंगी Wenn Sie irgendwelche Fragen haben कोई भी सवाल हो तो पूछ लें हमजा फातिमा हाफिज बिलाल हसान Nein, ich habe keine फहद Frage. निमरा सबा जावेद सायरा मुर्तज़ा वाइज जीशान keine Fragen कोई यस सवाल नहीं सर है एक सवाल है If you यस have a सर question एक raise your सवाल hand किसका क्वेश्चन है हमजा का हमजा मेरा ओके यस बिकॉज ऑफ मेरा क्वेश्चन इस पे है वाइल का मतलब बिकॉज और देन का भी मतलब बिकॉज जो वाइल है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टर जो देन है वो है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर एक आप काफी दफा यूज भी कर रहे हैं जब आप बोलते हैं वेगन उसका भी मतलब बिकॉज है ना वेगन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ और वेगन ओके ist kein Konnektor वेगन कोई कनेक्टर नहीं है हमजा वेगन ist eine Präposition ये जो वेगन है वो एक्चुअली एक preposition है जो कि गेनेटिव preposition यानी गेनेटिव preposition कहलाती है ओके जैसे आ, चार केसेस होते हैं जर्मन में नॉमिनाटिव अकुजाटिव डाटिव ना Dati. डाटिव ऐसे ही एक केस और होता है जिसको कहा जाता है गैनिटिव तो जब हम गैनिटिव पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेपोजिशन गैनिटिव प्रेपोजिशन क्या होती है वेगन फिलहाल इतना याद रखें कि वाइल अलग है और वेगन अलग है ठीक होगा klar sehr gut okay dann fangen wir mit einem neuen Thema आज का जो नया टॉपिक है उसको शुरू करते हैं und heute lernen wir Kausalsätze pronounce it me Kausalsätze Kausal. Kausal Kausal. Sätze. Sätze. Kausal. Kausal bedeutet causal. Causal. Causal sentences. Causal sentences ऐसे जुमले जिनमें cause बताया जाए. Cause का मतलब है किसी भी चीज का Badda. cause बताया जाए या उसकी वजह बताई जाए. Was sind Kausalsätze? Kausalsätze यानी causal sentences क्या होते हैं? Kausalsätze or causal sentences are subordinate clause. ये actually subordinate clause यानी Nebensatz होते हैं. Subordinate clause को जर्मन में कहते हैं Nebensatz. That explain जो हमें explain करते हैं कि why something happens कोई काम अगर हुआ अगर कोई काम अगर हुआ तो क्यों हुआ why warum warum etwas passiert कोई काम अगर हुआ तो क्यों हुआ they give a reason or cause ये ऐसे जुमले होते हैं जो किसी भी काम का किसी भी एक्शन का रीजन देते हैं pronounce with me reason der Reason. Reason. Grund pronounce with me der Grund Their grund. Der Grund Grund. der Grund. Grund der Der Grund Grund. bedeutet reason या वजह याद रखिएगा wenn wir Grund geben when we give a reason when we are Grund geben जब भी हम कोई रीजन देते हैं किसी भी काम के होने की वजह बताते हैं कि अगर ये काम हुआ तो क्यों हुआ dann benutzen wir immer Kausalsätze तो हम हमेशा Kausalsätze यानी causal sentences का यूज करते हैं and in German जर्मन जबान में we use while हम while का यूज करते हैं we use da हम da का यूज करते हैं we use then हम then का यूज करते हैं to introduce these causal sentences इन जुमलों को बनाने के लिए each word while da then each word
has the same meaning. Alle haben die gleiche Bedeutungen, aber लेकिन verschiedene Verwendungen. इनका जो मीनिंग है वो सबका सेम है, aber verschiedene Verwendungen, इनका जो यूजेज या इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ है. Und schauen wir das in diesem Thema. इस टॉपिक में इंशाल्लाह इसको देखेंगे. Klar, समझ आया सबके कि was sind Kausalsätze? Causal sentences यानी causal जुमले क्या होते हैं? ऐसे जुमले Yes, sir. जिनमें किसी भी काम का कॉज बताया जाए, किसी भी काम की वजह बताई जाए. Grund यानी रीजन, वजह. Jetzt zum Beispiel. Zum Beispiel, Ali hat eine Party. अली की तरफ एक पार्टी है. Und Ali fragt Bilal. अली बिलाल से पूछे, kommst du zur Party? क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? Und Bilal sagt, बिलाल कहे, nein, ich komme nicht zur Party. मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ. Dann fragt Ali. फिर अली पूछेगा, warum? Warum kommst du nicht? तुम क्यों नहीं आ रहे? तुम क्यों नहीं आ रहे? Dann gibt Bilal einen Grund. तो बिलाल क्या देगा? रीजन देगा कि वो पार्टी में क्यों नहीं आ रहा. Warum? Warum kommst du nicht zur Party? तुम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे? जब भी कोई सवाल warum से पूछा जाए तो उसके जवाब में हमेशा क्या बताया जाता है? रीजन यानी वजह. Der Grund. Grund यानी रीजन बताया जाता है. Geben wir einen Grund. किसी भी काम की वजह बताई जाती है कि अगर मैं पार्टी में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, अगर मैं घर पर हूं तो क्यों हूं. और रीजन बताने के लिए जो कनेक्टर हम यूज करते हैं वो कनेक्टर क्या है? while. pronounce it me, while. while क्या देता है? रीजन. याद रखिएगा. while gibt immer einen Grund. while gives always a reason. किसी भी काम की वजह बतानी हो कि ये काम क्यों हुआ तो उसके लिए benutzen wir immer while. हमेशा while का कनेक्टर यूज किया जाता है. Klar? Dann haben wir zwei Sätze, ना दो जुमले हैं. Ich komme nicht zur Party. मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ. Und ich bin krank. मैं बीमार हूँ. Was ist der Grund? इन दोनों जुमलों में Grund यानी रीजन, वजह क्या है? कौन सा जुमला एक रीजन है? हम्म? कौन सा जुमला रीजन है? Krank Ich bin reason. krank. Ich bin krank. Das ist ein Grund. ये रीजन है, ये वजह है. Und wenn wir Grund geben, जब भी हम Grund यानी रीजन देते हैं तो हम कौन सा कनेक्टर यूज करते हैं? हम्म? while. while. और याद रखिएगा कि while kommt immer mit einem Nebensatz. while जो कनेक्टर है वो एक ऐसा कनेक्टर है जो हमेशा अपने साथ एक Nebensatz को फॉलो करता है. हमेशा. Ich verbinde beide Sätze mit while. अब मैं इन दोनों जुमलों को while से कनेक्ट करूंगा. Und sage ich. और मैं कहूंगा ich, schreibe ich hier, मैं यहाँ लिख देता हूँ. Ich komme nicht zur Party. मैं पार्टी में नहीं आ रहा. Weil, क्योंकि. Weil ich bin krank. ये ठीक है? Ich bin krank, ये सही लिखा मैंने. सर ये इश क्रैंक बिन होगा. Warum? ये While bin आखिर में क्यों सर ये जाएगा? नेबल आर्ट्स सेंटेंस है इसलिए. Wegen Nebensatz. Nebensatz की वजह से. क्योंकि इस जुमले को while ने क्या कर दिया? एक Nebensatz बना दिया. Ich komme nicht zur Party. मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ. Weil, क्योंकि. Ich krank bin. क्योंकि मैं बीमार हूँ. Einfach. Klar, Hamza. Hast du noch Frage, Hamza? कोई question?
यस सर, वो एक क्वेश्चन है दा के ऊपर, डी ए जो आपने ऊपर बताया, उसका मतलब आपने कहा बिकॉज है। अ, एक एग्जांपल है, जैसे फॉर इंस्टेंस टेलीफोन मेरा टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अगर मैं पूछूं किसी मतलब जो मेरे आसपास है उनसे पूछूं, तो वो जवाब इस तरह देते हैं कि एस इश दा, हम्म, एस इस दा, सॉरी, मतलब इट इज देयर। तो हम्म, दा का मतलब देयर नहीं है। बिल्कुल। दा का मतलब देयर भी होता है, दा का मतलब देयर भी होता है, दा का मतलब बिकॉज भी होता है। जर्मन जबान में एक लफ्ज के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं और होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस के हिसाब से हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ओके, दा का मतलब देयर भी होता है। इश बिन दा, मैं वहां मौजूद हम्म, हूँ। लेकिन दा एक ठीक। कनेक्टर भी है जिसको रीजन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके हमजा, द शाउन गलाई, जिसको ठीक। इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि दा की मदद से रीजन कैसे दिया जाता है। ओके, very good. Dann zuerst, सबसे पहले, kommt ein Hauptsatz। सबसे पहले क्या आएगा? एक Hauptsatz आएगा। Kennen Sie alle Hauptsatz? Hauptsatz पता है सबको क्या होता है? Hier steht यस der सर। Satzbau des Yes, sir. Hauptsatzes ना, यहाँ Hauptsatz का Satzbau यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। Zuerst सबसे पहले, kommt ein Subjekt am Anfang। Am Anfang bedeutet at the beginning। बिगनिंग यानी शुरुआत में फर्स्ट पोजीशन पर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। Dann kommt Verb auf Position 2। सेकंड पोजीशन पर हमेशा एक वर्ब आता है। Und am Ende, at the end, steht immer ein Objekt। और आखिर में क्या होता है? जुमले के एक ऑब्जेक्ट होता है। Das ist ein Hauptsatz। ये क्या है? एक Hauptsatz यानी मेन क्लॉज। ओके, nach dem Hauptsatz, Hauptsatz के बाद kommt ein Konnektor। उसके बाद क्या आता है? एक कनेक्टर आता है। Und hier, weil ist ein Konnektor। इस जुमले में while क्या है? एक कनेक्टर है। Und bedeutet, जिसका मतलब है because। इसका मतलब क्या है? because, जो कि किसी भी काम का रीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है। Dann nach dem while oder nach dem Konnektor, कनेक्टर के बाद, kommt immer einen Hauptsatz। कनेक्टर के बाद हमेशा क्या आता है? एक Nebensatz। Nebensatz bedeutet subordinate clause। subordinate clause। और इस Nebensatz की खास बात क्या होती है? hm? Wie ist der Satzbau von einem Nebensatz? Nebensatz का सर Satzbau, वर्ब एंड पे चला जाता। hm? Sehr gut। In einem Nebensatz, Nebensatz में das Verb steht immer am Ende। जो वर्ब होता है जुमले में वो हमेशा लास्ट पोजीशन पर होता है। Klar, das ist ein Nebensatz। ये है एक Nebensatz। याद रखिएगा, Nebensatz benutzt man meistens im Alltagsgespräch। Nebensatz जो होते हैं, इन जुमलों का इस्तेमाल डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इसीलिए üben wir Nebensatz, या इसीलिए हम Nebensatz की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, jetzt da können wir auch while benutzen। हम while का यूज भी कर सकते हैं। und auch da, हम da का यूज भी कर सकते हैं। beide haben die gleiche Bedeutungen। इन दोनों की Bedeutung यानी मीनिंग सेम है। da का मतलब भी होता है because, while का मतलब भी होता है because। और याद रखिएगा, while und da, while और da, ये दोनों कौन से कनेक्टर हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स। while और da, ये दोनों सब ऑर्डिनेटिंग हैं। इसका ये मतलब है कि while und da, beide kommen immer mit einem Nebensatz। ये दोनों कनेक्टर्स अपने साथ हमेशा Nebensatz को फॉलो करेंगे, हमेशा। Jetzt schauen wir, अब हम देखते हैं Beispielsätze, कुछ example sentences। So Beispiel,
अली hat eine Party, अली की तरफ एक पार्टी है। und अली ruft हमजा an, अली जो है वो हमजा को फोन करे। und fragt अली, और अली बोले kommst du heute zur Party हमजा, हमजा क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? und हमजा sagt, हमजा कहे nein, ich komme nicht zur Party, मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ। dann fragt अली, अली पूछे warum, warum, क्यों? warum kommst du nicht zur Party, तुम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो हमजा? dann Hamza hat einen Grund, Hamza has a reason, und der Grund ist, और Grund यानी reason क्या है हमजा के पास? ich bin krank, ich bin krank का क्या मतलब है कि मैं बीमार हूँ। das ist ein Grund, Hamza hat diesen Grund, हमजा के पास ये reason है। und wenn wir Grund geben, wenn wir give a reason, जब भी हमें किसी काम का reason देना होता है, welcher Konnektor benutzen wir, ऐसा कौन सा कनेक्टर है जो हम रीजन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं? while while, sehr gut, while, हमजा benutzt while, हमजा while का इस्तेमाल करेगा। हमजा benutzt while plus reason, while के साथ हमजा क्या देगा? अपना रीजन देगा। und sagt हमजा, हमजा कहेगा ich komme nicht zur Party, मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ। weil, क्योंकि ich krank bin, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ich komme nicht zur Party, मैं पार्टी में नहीं आ रहा। weil, क्योंकि ich krank bin, मैं बीमार हूँ। warum steht bin am Ende, ये bin आखिर में क्यों चला गया? क्योंकि वाइल coordinating का वाक्य reason हो Neben गया। Satz. Nebensatz, sehr Because gut. Weil kommt immer mit einem Nebensatz, while है वो अपने साथ हमेशा Nebensatz को फॉलो करता है, हमेशा। sehr gut. ich komme nicht zur Party, मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ। da ich krank bin, तो आपने देखा कि रीजन देने के लिए यानी wenn wir Grund geben benutzen wir entweder while, या तो हम while का यूज करते हैं, oder da, या हम da का यूज करते हैं। सर ich अगर बोलना हो कि मुझे एक काम था तो सेंटेंस कैसे होगा? इस अर्बाइटे habe weil ich Arbeit hatte, मुझे काम hatte. था। okay, ओके सर, einfach। थैंक यू। zwei Sätze, दो जुमले। ich komme nicht, मैं नहीं आ रहा। ist es ein Hauptsatz oder Nebensatz? ये जो जुमला आपको दिख रहा है ये मेन क्लॉज है, Hauptsatz है या Nebensatz है? मेन क्लॉज। Hauptsatz Hauptsatz, Hauptsatz, मेन क्लॉज, Hauptsatz। ich komme nicht, मैं नहीं आ रहा। weil, क्योंकि ich krank bin, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ich komme nicht zur Party, मैं पार्टी में नहीं आ रहा। da ich krank bin, क्योंकि मैं बीमार हूँ। weil का मतलब भी है क्योंकि, da का मतलब भी है क्योंकि। aber was ist der Unterschied zwischen beide, weil und da? इन दोनों में असल फर्क क्या है? Wann benutzt man weil का इस्तेमाल कब करते हैं? Wann kommt da, ये da कब आता है? Das schauen wir gleich, इसको अभी देखते हैं। aber wie gesagt, जैसे पहले बताया गया, weil und da, beide sind subordinating Konnektoren, ये दोनों क्या हैं? subordinating connectors, जो कि हमेशा अपने साथ किसको फॉलो करते हैं? नेबेनजार्ड्स को। ये याद रखिएगा, चाहे while हो या da हो, ये दोनों सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टर हैं जो अपने साथ हमेशा नेबेनजार्ड्स को फॉलो करते हैं। beide kommen immer mit einem Nebensatz, aber लेकिन wann benutzt man while का इस्तेमाल कब किया जाता है? benutzt man while, हम while का इस्तेमाल करते हैं beim Sprechen यानी during speaking, im Alltagsgespräch, Daily Life Conversation में।
benutzen wir immer weil. डेली लाइफ कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ कम्युनिकेशन में एक दूसरे से बातचीत करते वक्त benutzen wir immer weil, हम हमेशा while का यूज करते हैं. benutzt man da nie im Alltagsgespräch. दा का इस्तेमाल डेली लाइफ कन्वर्सेशन में कभी नहीं किया जाता. aber wann benutzt man da, तो फिर दा का इस्तेमाल कब किया जाता है? benutzt man da immer beim Schreiben. Immer beim Schreiben. Im schriftlichen Deutsch यानी written German, formal written German. In newspaper, articles, blogs, अगर आप जर्मन अखबार पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे दा का इस्तेमाल जर्मन ब्लॉग्स, जर्मन आर्टिकल्स, न्यूज़, रिटर्न जर्मन. दा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रिटर्न जर्मन में किया जाता है. फॉर्मल रिटर्न जर्मन. स्टोरी बुक्स, अगर आप कोई जर्मन स्टोरी बुक पढ़ें, कहानी की किताब, उसमें आपको दा का इस्तेमाल मिलेगा, वाइल नहीं मिलेगा. याद रखिएगा. ओके, सो वाइल का इस्तेमाल सिर्फ कब करते हैं? benutzt man weil nur im Alltagsgespräch beim Sprechen. वाइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डेली लाइफ कम्युनिकेशन में, रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाता है. aber benutzt man da nie im Alltagsgespräch. दा का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता beim Sprechen. Da benutzt man nur im schriftlichen Deutsch, written German. Klar? सबको क्लियर है? Okay, dann. Wenn wir use while und da, das haben wir schon gesehen, ना? ये हमने already देख लिया. While is more common in spoken German, जबकि da is used more in formal or written German. Und beide Konnektoren sind subordinating Konnektoren kommen immer mit einem Nebensatz. ये दोनों कनेक्टर्स हमेशा अपने साथ नेबेनजार्ट्स को फॉलो करते हैं. क्यों करते हैं नेबेनजार्ट्स को फॉलो? क्योंकि ये दोनों कनेक्टर्स क्या हैं? सब ऑर्डिनेटिंग Ordinate. कनेक्टर्स हैं. हमेशा याद रखिएगा. Klar? Sehr gut. Dann machen wir ein paar Beispielsätze. कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं mit while की मदद से. Zum Beispiel, ich gehe raus, मैं बाहर जा रहा हूँ. Und du bleibst zu Hause. और आप घर पर हो. Ich frage dich, मैं आपसे पूछूं, warum bleibst du zu Hause? Warum bleibst du zu Hause? तुम घर पर क्यों हो? Und du hast einen Grund, और आपके पास एक रीजन हो, एक Grund हो देने के लिए. Und du gibst mir einen Grund, आप मुझे रीजन दो. और रीजन क्या है? Ich bin krank, मैं बीमार हूँ. और आप मुझे कहो कि मैं घर पर हूँ. Ich bleibe zu Hause, मैं घर पर हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ. Wie sagt man auf Deutsch? कैसे कहा जाएगा जर्मन में? मुर्तजा, वाइज, जीशान, हसान, हमजा, दुरिया, भावना, फातिमा, अली नवाज. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Ich bleibe zu Hause. Ich bleibe zu Hause, मैं घर पर हूँ, weil, क्योंकि, ich krank bin, क्योंकि मैं बीमार हूँ. Einfach, ना? Sehr gut, भावना. Ich bleibe zu Hause, weil ich müde bin, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ. Sehr gut. Dann, ich esse den Kuchen, मैं कुchen यानी केक खा रहा हूँ. Und du isst nicht, और आप नहीं खा रहे. Ich frage dich, मैं आपसे पूछूंगा, warum isst du den Kuchen nicht? तुम केक क्यों नहीं खा रहे? Dann gibst du mir einen Grund, और फिर आप मुझे रीजन दोगे. Und der Grund ist, Grund यानी रीजन क्या है आपका? रीजन ये है, ich habe, ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Hunger, मुझे भूख नहीं है. मैं केक नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं है. Wie sagt man auf Deutsch? कैसे कहा जाएगा जर्मन में? Ich esse Ich esse den Kuchen nicht, weil ich weil
while Kainen ish hoga. Keinen, keinen Hunger keinen habe. Hunger habe. Einfach, ne? Ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Hunger. I don't have hunger. मुझे भूख नहीं है. Aber, लेकिन, habe, warum geht habe am Ende? ये habe जुमले में आखिर में क्यों चला गया? Warum? Nebensatz. नेबनजार्ट्स Nebensatzs की वजह से. क्योंकि while क्या है? एक सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है और while एक ऐसा कनेक्टर है जो किसी भी जुमले में अगर इस्तेमाल हो तो वो उस जुमले को क्या बना देता है? नेबेनजार्ट्स बना देता है. उन वन बिनुट्समान while, ये while का कनेक्टर जुमलों में कब आता है? हर जुमले में आता है क्या? When we have to give a reason. When we are geben, when we give a reason, जब हम कोई रीजन देते हैं, किसी काम की वजह बताते हैं. Klar? Sehr gut. Hamza, hast du noch Frage? Hamza, कोई क्वेश्चन? यस ये सर सेंटेंस रिव्यू आपसे करवाना था. Ich esse den Kuchen nicht, weil es sehr süß ist. ये sehr करेक्ट है gut. या? बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. ओके. Okay, sehr gut. Dann Excuse me, sir. While ich Fatma. that bin. Hmm, While ich that bin. बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं. बस याद रखें पास auf. Das Verb steht immer am Ende. जो वर्ब है वो हमेशा आखिर में जाएगा. चाहे वो कोई हेल्पिंग वर्ब हो, haben हो, sein हो या कोई मेन वर्ब हो, कोई सा भी वर्ब हो, वो हमेशा आखिर में जाएगा. ओके. Hamza, hast du noch Frage? कोई क्वेश्चन? Okay, dann. Nope, all is clear from my side. Okay, Saira, hast du noch Frage? कोई क्वेश्चन? सर काइने और काइनन में क्या डिफरेंस है? Keine और काइनन. Accusative article. Lecture 10 A1. अपने पास नोट कर लें. Lecture 10 A1 accusative. ओके. मस्कुलिन नॉमिन. जो accusative का मस्कुलिन नाउन होता है उसके साथ काइनन आता है, जबकि जो फेमिनिन होते हैं उनमें काइने आता है ना. Sehr gut. Hassan, hast du noch Frage? कोई क्वेश्चन? Yes, sometimes we have sentence where we have two verbs, तो उस टाइम पे हम कौन सा वर्ब एंड पे लेकर जाएंगे? दो वर्ब्स कौन से जुमले में होते हैं? जब एक हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और एक मेन वर्ब भी आ सकता है. एक जुमले में दो वर्ब नहीं आ सकते आसान. एक जुमले में एक ही वर्ब होता है. ओके. ओके. एक जुमले में या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो मेन वर्ब होगा. क्लियर? ओके. वेरी ओके, गुड. थैंक मॉडल वर्ब के जुमले ऐसे होते हैं, मॉडल वर्ब, जिनमें सेकंड पोजीशन पर मॉडल वर्ब होता है और आखिर में क्या होता है? मेन वर्ब होता है. ऐसे जुमले हैं जिनमें दो वर्ब होते हैं. तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो मेन वर्ब आखिर में मौजूद है वो वहीं रहेगा और मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन से उठकर आखिर में चला जाएगा. हमजा, हसान, सॉरी. ओके. ओके. उस अंडरस्टैंड. मॉडल वर्ब की सिचुएशन में सिर्फ मॉडल वर्ब के जुमले वाहिद ऐसे जुमले हैं जिनमें दो वर्ब होते हैं. एक खुद मॉडल वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. द शाउन भी अगलाइश, इसको अभी देखते हैं, इसकी भी एग्जांपल्स हैं आगे. हसान. ओके. श्योर. श्योर, Sehr थैंक यू. gut, sehr gut. सैयद मुर्तज़ा, hast du noch Frage? कोई क्वेश्चन? या सर हम किसी को अगर पूछना चाहे कि क्या आप खाना खाओगे, उर्दू में हम ऐसे बोलते हैं, तो सर जर्मन में कैसे बोलेंगे इसको? अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप खाना खाओगे तो आप सिंपल पूछ सकते हो ना. विल्स्ट हम्म, डू एसन. विल्स्ट डू एसन का मतलब है कि डू यू यस. वांट टू ईट, क्या आप खाना खाओगे. और जो विल्स्ट है एक मॉडल वर्ब है. ओके. मॉडल मोडाल वर्ब लेनन वी später. मॉडल वर्ब्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके. या ओके तो सर, फिर दैट्स आपको समझ आ जाएगा कि किसी से अगर कुछ पूछना हो तो कैसे पूछा जाए जब हम मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे. व्हेन वी आर मॉडल वर्ब lernen. Klar? या सर. Sehr gut. Sehr gut.
Ich mache meine Hausaufgaben, मैं अपना होमवर्क करता हूँ. Aber लेकिन du machst deine Hausaufgaben nicht. तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो. Warum? Warum machst du deine Hausaufgaben nicht? तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो? Sie alle machen ihre Hausaufgaben nicht. आप में से कोई भी होमवर्क नहीं करता. Aber warum? क्यों नहीं करते? जब भी किसी से पूछो warum machst du deine Hausaufgaben nicht? तो एक ही रीजन होता है. और रीजन क्या होता है? Ich habe keine Zeit. Sehr gut. Ich habe keine Zeit. मेरे पास वक्त नहीं है. Das ist immer ein Grund. ये हमेशा रीजन होता है. Ich habe keine Zeit. Wie sagt man auf Deutsch? जर्मन में कैसे कहा जाएगा कि मैं अपना होमवर्क नहीं करता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता? हम्म? Wie sagt man auf Deutsch? कैसे कहेंगे जर्मन में? हम्म? Ich mache meine Ich mache Hausaufgaben nicht, meine Hausaufgaben nicht, weil ich keine Zeit habe. ich keine Zeit Weil habe. ich keine habe. Sehr gut. Äh, ich habe keine Zeit. मेरे पास वक्त नहीं है या वक्त नहीं होता. Aber wenn wir einen Grund geben, wenn wir give a reason, जब भी हम reason देंगे, then geht habe immer am Ende. तो जो habe है वो जुमले के आखिर में चला जाएगा. Immer, हमेशा. Ich mache meine Hausaufgaben nicht, weil ich keine Zeit habe, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता. Einfach. Klar? Sir, how to say I forgot to do? Hamza, kannst du das wiederholen? Sir, how to say I forgot to do homework? I forgot. Ich habe Hausaufgaben vergessen, ना? Vergessen कहते हैं. भूल जाने को. Pronounce with me. Vergessen. Forgotten. Vergessen का मतलब है भूल गया. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen. मैं अपना होमवर्क Forgotten. भूल गया. Ich mache meine Hausaufgaben nicht. मैं अपना होमवर्क नहीं करता, weil ich das vergessen habe. क्योंकि मैं ये भूल जाता हूँ. Okay, vergessen habe. Klar? Forgotten verb है. बिल्कुल. Vergessen past participle है. Yes, sir. Thank you. Einen Moment, schreibe ich hier ganz oben. मैं आपके लिए ऊपर लिख देता हूँ. Ich habe vergessen. Ich habe vergessen का मतलब है I forgot. मैं भूल गया. Perfect. Perfect का जुमला है ये, अगर आपको याद हो. Ich habe vergessen. मैं भूल गया. I forgot. लेकिन अगर आप रीजन दोगे और while का यूज करोगे तो while की वजह से ये habe कहाँ चला जाएगा? Ich vergessen habe. Sehr gut. Weil ich vergessen habe. Sehr gut. Klar? Sir? Okay. If you have a question, raise your hand. किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, raise your hand. किसका क्वेश्चन था? मुर्तजा. सर मेरा एक क्वेश्चन है. सर ये सर warum machst du deine Hausaufgaben nicht dies ये जो zs हैं, अगर इसमें do की जगह z यूज करें तो सर कैसे यूज करेंगे z? अगर तो warum आप machst हाँ अगर तो आप do की जगह z यूज करोगे, तो अब ये machst की जगह machen हो जाएगा और deine की जगह ihre हो जाएगा ना. ओके, ihre हो जाएगा. Einfach. या Klar, ओके सर. मुर्तजा? या सर. Sehr gut, sehr gut. लेक्चर नंबर 5 A1. वे अब स्ट्रोक ना, आप रिवाइज कर लेना A1 में से लेक्चर 5. ओके, डन. वाइट अगेन. आगे चलते हैं. Ich gehe raus. मैं बाहर जा रहा हूँ. Aber du gehst nicht. लेकिन आप बाहर नहीं जा रहे हो. Ich frage dich. मैं आपसे पूछूं warum? Warum gehst du nicht raus? तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? Und sagst du mir, आप मुझे कहो कि बाहर तो बारिश हो रही है. Wie sagt man auf Deutsch? जर्मन में कैसे कहा जाएगा? बारिश हो रही है. Es Regen. regnet. Es regnet.
Es regnet तो bedeutet it's raining. बाहर बारिश हो रही है. मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है. Because it's raining. Wie sagt man auf Deutsch? hm? Ich gehe nicht raus. मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ. Weil क्योंकि es regnet. बारिश हो रही है. ओके klar. भावना. भावना. Es ist Regen नहीं होगा. Because regnen regnen ist ein Verb. regnen क्या है? एक वर्ब है. और ist भी एक वर्ब है. ये दोनों एक वर्ब है. और एक जुमले में दो वर्ब नहीं आ सकते. एक जुमले में एक ही वर्ब होता है. sagen wir हम कहते हैं es regnet. es regnet. इसका मतलब होता है कि it's raining. बारिश हो रही है. ओके जर्मन जबान में एक जुमले में दो वर्ब नहीं हो सकते. klar? sehr gut. Ich gehe einkaufen. मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ. einkaufen bedeutet शॉपिंग. मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ. aber लेकिन du gehst nicht. तुम नहीं जा रहे. Ich frage dich. मैं तुमसे पूछूं कि warum gehst du nicht einkaufen? तुम शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जा रहे? Dann hast du einen Grund. आपके पास एक रीजन है. और वो रीजन क्या हो सकता है? मैं शॉपिंग पर क्यों नहीं जा रहा? Hmm? Keine Geld. Kein Geld. Ich kein habe Geld. kein Geld. kein Geld. ये तो हम सबका मसला है. kein Geld. ich habe kein Geld. मेरे पास पैसे नहीं है. मैं शॉपिंग पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं. Wie sagt man auf Deutsch? कैसे कहा जाएगा जर्मन में? Hmm? Ich gehe nicht einkaufen, weil ich kein Geld habe. Weil ich kein Geld habe. Sehr gut. Ich gehe nicht einkaufen. मैं शॉपिंग पर नहीं जा रहा. Weil क्योंकि ich kein Geld habe. क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. Normalerweise, normally, sagt man oft, अक्सर कहा जाता है, ich habe kein Geld. मेरे पास पैसे नहीं है. Aber wegen Nebensatz, weil की वजह से, habe kommt immer am Ende. जो habe है वो आखिर में आ जाएगा. Ich keine Zeit habe, ich kein Geld habe. Einfach habe am Ende. Okay? Sehr gut, Saira. Hast du eine Frage, Saira? कोई question? सर वो रेन वाला जो सेंटेंस है हम्म उसमें इट्स रेनिंग इसका मतलब है कि इट इज आई मीन अपोस्ट्रोफी एस वाला बिल्कुल वो इसका मतलब सेंटेंस. होता है it is raining ना it is raining. हम्म सर तो सर अगर हम बगैर अपोस्ट्रोफी एस लिखे तो फिर एस इस्ट रेगन आएगा. हम्म regnet जो है ये एक वर्ब है और एक जुमले में दो वर्ब नहीं हो सकते सायरा. Zum Beispiel सर अगर हम इस्ट लगाएं तो फिर रेगन आएगा कि रेगनेट ही रहेगा. regnet ही रहेगा लेकिन ist नहीं आ सकता. ओके ist नहीं आ सकता क्योंकि regnen का मतलब ही होता है बारिश का होना. es regnet मतलब बारिश हो रही है. Klar? जैसे ओके इंग्लिश ओके. में होता है I. जैसे मैं कहूँ कि he is coming. he is coming. वो आ रहा है. he is coming. coming की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने. और लिखिए ना. यस सर. नहीं वो कॉमे की वजह से मैं डबल एम लगा देता हूँ. सॉरी. ही इज कमिंग वो आ रहा है. ओके ही इज कमिंग. तो अब जर्मन में अगर हम लिटरल देखें तो लिटरल आप कहेंगी कि इसको होना चाहिए er ist kommt ना. लेकिन das ist falsch. ये गलत है क्योंकि ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है और एक जुमले में दो वर्ब नहीं हो सकते. तो जर्मन जबान में ये रूल है कि एक जुमले में एक ही वर्ब होता है. हम कहते हैं er kommt. er kommt का मतलब है he is coming. वो आ रहा है. ich komme. I am coming. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है
जर्मन जबान में ऐसा नहीं होता है। ओके, ये बहुत बेसिक है। सर सर लेकिन मॉडल वर्ब के केस में और जैसे पास्ट दस परफेक्ट था उनमें तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल था। बिल्कुल, उसमें होते हैं दो वर्ब। मॉडल वर्ब्स में होते हैं दो वर्ब, परफेक्ट के जुमलों में होते हैं दो वर्ब, नॉर्मल जुमलों में दो वर्ब नहीं होते। क्लियर? ओके सर। जय गुड, जय गुड। आप लोग लेक्चर नंबर 6 A1 का रिवाइज कर लेना लाजमी, ये बहुत बेसिक है, ये अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है A1 में, तो आप लोग अपनी बेसिक्स को मजीद रिवाइज कर लेना। लेक्चर नंबर 6 A1 ड्राइव में आपको मिल जाएगा लेसन। क्लियर? ओके, जय जी गुड। सर। डन। Du bist immer spät, तुम हमेशा लेट आते हो। Aber warum bist du heute spät? तुम आज लेट क्यों हो? Warum bist du heute spät? तुम आज लेट क्यों हो? Saba, hast du eine Frage, कोई question, Saba? Ah, Ja, ich habe eine Frage. hm, Beispiel, ich möchte nicht kaufen gehen, weil ich habe kein, ich brauche nichts. Dann, hm. wie können wir sagen das? Weil ich nicht brauche, ne? Weil Ja, ich nichts brauche einfach. okay, danke. I don't need anything, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। brauche, ich brauche nichts, तो आप इसके लिए यूज़ करोगे while ich nichts brauche। ओके, जो brauche वर्ब है अब वो आखिर में चला जाएगा while की वजह से। klar? Okay, and sometimes Germans use nichts. Is that same as nichts? nichts और nichts beide sind richtig ना, ये दोनों ठीक है। nichts, जब nichts का मतलब होता है nothing, nothing, nichts का मतलब होता है nothing, और nicht अलग है, nicht का मतलब होता है not ना, Okay, not। Dankeschön. zum Beispiel gehst du raus, क्या तुम बाहर जा रहे हो? Nein, ich gehe nicht raus, नहीं मैं बाहर नहीं जा रहा। spielst du, क्या तुम खेल रहे हो? Nein, ich spiele nicht, मैं नहीं खेल रहा। nicht का मतलब होता है नहीं, लेकिन was ist nichts? ये nichts क्या है? nichts के आखिर में एक एडिशनल s क्यों आता है? Das bedeutet nothing। brauchst du etwas? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? Nein, ich brauche nichts। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, nothing। hast du etwas? तुम्हारे पास कुछ है? Nein, ich habe nichts। I have nothing। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना होना, nichts। klar? Sehr gut। Dann Fahad, hast du eine Frage, Fahad? कोई question? यस, जो होफ जार्स में निश की पोजीशंस है वो मतलब दो एग्जांपल्स में डिफरेंट थी, उसका कोई मतलब रूल है? निश्त की पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है, निश्त की पोजीशन हमेशा उसके बाद होती इससे है ना। पहले वाले फिक्रे में निश की पोजीशन डिफरेंट थी, आई गेस। उससे पहले जो बिल्कुल। सूट पार्टी थी उसमें मैं निश मतलब जो होफ जार्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ich gehe nicht einkaufen, और ऊपर एक जो मतलब ich gehe nicht zu Party nicht था, आई गेस उसमें निश बाद में पार्टी की, आई गेस इससे ऊपर था वो निश्त हमेशा सेंटेंस, आई वर्ब थिंक। के बाद आता है ना, निश्त हमेशा वर्ब के बाद आता है। सो beispiel मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, फहद ich gehe nicht zur Party, ich gehe nicht einkaufen। nicht तो वर्ब के बाद आता है ना। नहीं वो तो ओके, है, मुझे एक मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, एक ऊपर जो आपने सबसे पहले एग्जांपल दी थी पार्टी वाली, वो काइंडली दिखाते हैं ऊपर? this one। ओके, ओके देन, या मुझे एक्चुअली लगा था कि ये निश जो था वो पार्टी के बाद था। नहीं नहीं, निश्त तो हमेशा नहीं पार्टी से पहले होगा ना। नहीं नहीं, इट्स फाइन, मुझे कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने। ओके, यट्स खिलाफ थैंक यू, क्लियर है। थैंक यू। या सर नेक्स्ट लास्ट में भी आ सकता है, जैसे मिसाल सेंटेंस हो वी आर फार एंड डाइन आउट ऑन नेक्स्ट, ये बिल्कुल सेंटेंस सही रहेगा? बिल्कुल, बाद में भी आ सकता है। निश्त की जो पोजीशन है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, वैसे A1 ओके की सर। ड्राइव में पड़ी हुई है।
ओके, मैं आप लोग के साथ दोबारा शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, डन। Du bist heute spät. तुम आज लेट हो। Aber warum? Warum bist du heute spät? तुम आज लेट क्यों हो? Dann gibst du einen Grund. फिर आप एक रीजन दोगे। और रीजन क्या होगा? मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। I have missed my train. I have missed my train. Wie sagt man? कैसे कहा जाएगा? Pronounce with me. Verpassen. Verpassen bedeutet to miss something. किसी चीज को मिस कर देना। To miss something. किसी चीज को मिस कर देना। और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या होता है? verpasst. Pronounce with me, verpasst. Kennen Sie perfekt? परफेक्ट के जुमले पता हैं सबको? Wie sagt man auf Deutsch? जर्मन में कैसे कहा जाएगा? I have missed my train. मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। Ich परफेक्ट habe का Ich जुमला। habe verpasst. verpasst meinen Zug. Sehr gut. Ich habe meinen Zug. या पास्ट Ich habe meinen Zug. Oder ich habe den Zug verpasst. Sehr gut. Past Participle steht immer am Ende. याद है सबको? Past Participle हमेशा आखिर में आता है। Sehr gut. यस Ich habe meinen Zug verpasst. मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। मैं लेट हूँ। Ich bin spät. क्योंकि मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। Weil. Wie sagt man auf Deutsch? कैसे कहा जाएगा जर्मन में? Using while. While का इस्तेमाल करके। हम्म, Ich bin spät. Ich bin heute Heute spät, spät, weil ich weil den Bus ich mein verpasst den habe. Zug verpasst habe. Sehr gut. Weil ich den Zug verpasst habe. क्योंकि मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। क्योंकि मेरी ट्रेन छूट गई थी। Ich bin heute spät, weil ich den Zug verpasst habe. Klar, समझ आया सबके? Sehr gut. Aber haben wir zwei Verben im Deutschen. जर्मन जबान में दो verbs हैं. Einer ist verpassen. Pronounce with me. Verpassen. या पासन Verpassen bedeutet to miss. Und auch ein Verb. Das heißt vermissen. Pronounce with me. Vermissen. या मिसन Vermissen bedeutet auch to miss. Vermissen का मतलब भी होता है to miss. Aber was ist der Unterschied zwischen beide Verben? इन दोनों verbs में क्या फर्क है? सर किसी को मिस करना या मिसन और वैसे वो सुकर है जना तो फिर पासन Sehr gut, Fatma. To miss someone, किसी इंसान को मिस करना. To miss someone. Vermissen, zum Beispiel, ich vermisse dich. मैं तुम्हें मिस करता हूँ. Ich vermisse dich. Aber verpassen, verpassen bedeutet to miss something, किसी चीज का हाथ से निकल जाना, किसी चीज को मिस कर देना. Ich habe meinen Zug verpasst. मेरी ट्रेन निकल गई, मेरी ट्रेन छूट गई. I missed my train. Klar, so verpassen में और vermissen में ये फर्क है. Einfach. ओके, आई होप कि यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होगी. हमजा, हसान, फहाद, निमरा, वाइज, जीशान, मुर्तजा. If you have any question, raise your hand. Hamza. सर Hast du noch Frage, Hamza? यस सर, ये फेमिसन के ऊपर Hmm? आई मिस यू इश फेमिसे मिश, अगर मैंने पास्ट में मतलब परफेक्ट में बात करनी है आई मिस्ड यू, तो ये इश फेमिस्ट डिश होगा या Ich कुछ और है? habe, ओके, ich Ich vermisse habe dich. dich vermisst. ओके, ना हमजा, जब भी पास्ट में बात की जाती है तो पास्ट के जुमलों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है. लेक्चर नंबर 2 परफेक्ट A2. अभी पिछला लेसन ही तो देखा हमने परफेक्ट का. और परफेक्ट में हमने देखा कि पास्ट की बात जब भी की जाती है व्हेन वी आर über Vergangenheit sprechen, then benutzt man immer Perfektsatz. हमेशा परफेक्ट का जुमला बनाया जाता है. और उस जुमले में हेल्पिंग वर्ब सेकंड पोजीशन पर होता है, habe. और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो आखिर में होता है, vermisst. Ich habe dich vermisst. मैंने तुम्हें मिस किया. Ich habe dich vermisst. Klar? ओके, Sehr gut. A2 का लेक्चर नंबर 2 रिवाइज कर लेना आप लाजमी.
ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? निम्रा, हाजुन अफ खां के कोई क्वेश्चन? यस सर। सर ये जो फेयर पास्ट ये भी वर्ब ही है? ये भी वर्ब है, पास्ट फेफासन भी पार्टिसिपल? वर्ब है, ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट फॉर्म है इसकी। जी जी। इसका मतलब इस सेंटेंस में भी दो वर्ब्स हो रहे हैं ना, एक बिल्कुल। हेल्पिंग और एक पास्ट बिल्कुल पार्टिसिपल। ऐसे ही है, परफेक्ट के ठीक है। जुमलों में दो वर्ब होते हैं, और मॉडल वर्ब में भी। मॉडल वर्ब में भी दो वर्ब्स होते हैं। ओके, बस। जी जी ठीक है सर। वेरी गुड। जीशान, जीशान जो बुस का बी है वो कैपिटल होगा। ओके, वाइल बुस ein Nomen ist, क्योंकि जो बुस है वो एक नाउन है और Nomen kommen immer mit einem großen Buchstaben ना, नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, चाहे वो Zug हो या बुस हो, गेल्ड हो। वेरी गुड, डन। Wir lernen Deutsch, हम जर्मन सीखते हैं। Du lernst Deutsch, तुम जर्मन सीखते हो। Aber warum? Warum lernst du Deutsch? तुम जर्मन क्यों सीखते हो? Dann sagst du, आप कहोगे ich, uh, ich lebe, ich, ich lebe uh, in Deutschland. मैं डॉइचलैंड यानी जर्मनी में रहता हूँ। मैं जर्मन सीखता हूँ या मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ। Wie sagt man auf Deutsch? कैसे कहा जाएगा जर्मन में? हम्म, Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, weil क्योंकि ich इश in Deutschland lebe, लेबे। ich in Deutschland lebe, क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ। klar, समझ आया सबके? sehr gut, dann warum lernst du Deutsch? तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो? Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, denn ich lebe in Deutschland. Ich lebe in Deutschland, denn ये was ist denn? ये denn क्या है? Und warum steht lebe auf Position 2? इस जुमले में जो lebe है वो सेकंड पोजीशन पर क्यों है? कोऑर्डिनेटिंग की वजह से सर। Was ist der कंजक्शन। Unterschied zwischen weil, da, denn? इन सब में फर्क क्या है? हम्म? While bedeutet, while का क्या मतलब है? Because. बिकॉज। Da because का क्या मतलब है? बिकॉज Because. Then का क्या मतलब है? बिकॉज बिकॉज। Because. Alle haben die gleiche Bedeutungen. इन दोनों का जो Bedeutung, इन सब का Bedeutung यानी मीनिंग है वो तो सेम है। Aber लेकिन verschiedene Verwendungen, इनका जो Verwendung यानी यूजेज इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ है। while का इस्तेमाल कब किया जाता है? डेली कॉन्वर्सेशन। सबऑर्डिनेटिंग। Spoken German. Beim Sprechen. Daily Life Communication में benutzt man while meistens beim Sprechen. while का इस्तेमाल कब किया जाता है? डेली लाइफ कन्वर्सेशन में, रोजमर्रा की जिंदगी में। Aber da, wann benutzt man फॉर्मल da? राइटिंग। Hmm? Da, formal formal writing जैसे न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, इन जगहों पर दा का यूज किया जाता है। Nicht beim Sprechen, स्पीकिंग में दा का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, klar, aber denn, was ist denn? ये denn कहाँ से आ गया? ये denn क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कनेक्ट हुआ। coordinating conjunction कोऑर्डिनेटिंग, और ये ऐसा कनेक्टर है जो अपने साथ हमेशा एक Hauptsatz को कैरी करता है। Es gibt keinen Nebensatz. There is no Nebensatz. Then के साथ कोई Nebensatz नहीं होता। Then तो एक कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब वन या मिनट्स सर मान देन का इस्तेमाल कब करें? while और दा का तो पता चल गया, देन कब यूज होगा? दो हाल सेट्स को परबिंडन करने के लिए लेकिन कब स्पोकन। यूज करेंगे? स्पोकन जर्मन,
इन फॉर्मल सिचुएशंस में अपने मैनेजर के साथ, बॉस के साथ, फॉर्मल जर्मन में, स्पीच में, ड्यूरिंग इंटरव्यूज में, फॉर्मल सिचुएशन में हमेशा देन का यूज किया जाता है, जबकि कैजुअली डेली लाइफ कन्वर्सेशन में दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, वर्क प्लेस पे कैजुअल वे वाई में benutzt man meistens while, हमेशा while यूज करते हैं. अब ich benutze immer while, मैं हमेशा while का यूज करता हूँ. मैं तो फॉर्मल सिचुएशंस में भी while का ही यूज करता हूँ, क्योंकि while इतना जबान पर बैठ गया है. Und meisten manche Leute benutzen immer while. ज्यादातर लोग हमेशा while ही यूज करते हैं किसी भी सिचुएशन में. ओके, सो üben Sie while की प्रैक्टिस करें जितना हो सके. आई होप कि सर अगर सायरा अगर अगर हम देन यूज करें फिर तो ये मतलब जितना हमने पढ़ा उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल सबऑर्डिनेटिंग वाले में। ऐसा ही है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोचें कि अगर while और then दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, benutzen wir nur then, हम सिर्फ then का इस्तेमाल करते हैं, while then immer mit einem Hauptsatz kommt, क्योंकि then तो हमेशा अपने साथ Hauptsatz को फॉलो करता है और हमारे लिए जुमला बनाना आसान होगा ना. मैं भी शुरू में ऐसा ही सोचता था कि क्या क्या फायदा बिला हो जाए, इतनी मुश्किल में पड़े हम while इस्तेमाल करें. ऐसा नहीं है. Im Deutschen, जर्मन में es gibt viele Konnektoren, ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, die immer mit einem Nebensatz kommen, जो हमेशा अपने साथ एक Nebensatz को फॉलो करते हैं. अभी तो आप बच जाएंगे while में, लेकिन आगे चलकर बहुत से कनेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने साथ Nebensatz को फॉलो करते हैं. Nebensatz आपको डेली लाइफ कन्वर्सेशन में इस्तेमाल तो लाजमी करना पड़ेगा, लाजमी. तो कोशिश करें कि अभी से उसकी प्रैक्टिस करें. इससे बच नहीं सकते हैं आप, Nebensatz से बच नहीं सकते. ओके, सो इससे बचने की कोशिश ना करें, while का यूज करें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि डेली लाइफ कम्युनिकेशन में Nebensatz बहुत यूज किया जाता है. ये तो पहला टॉपिक है Nebensatz का. आगे चलकर और भी बहुत से टॉपिक्स को देखेंगे. क्ला, हमजा, अली नवाज, भावना, दुरियाब, फातिमा, हमजा, तारिक, हसन, फहद, निमरा. alles klar? यहाँ तक क्लियर है सबको? वाइज, मुर्तजा, सायरा, जीशान, सबा. यस सर. Sehr gut. Alles Dann klar. weitergehen. आगे चलते हैं. Warum lernst du Deutsch? तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland lebe. Ich lerne Deutsch, da ich in Deutschland lebe. Ich lerne Deutsch, denn ich lebe in Deutschland. Was ist der Unterschied zwischen alle? इन सब जुमलों में फर्क क्या है? एक मेन डिफरेंस जो आपको दिखा वो क्या है? verb position and connector. Position of verb verb. पोजीशन, वर्ब की पोजीशन, वर्ब की पोजीशन. इन दोनों जुमलों में वर्ब की पोजीशन am Ende यानी आखिर में क्यों है? Nebenzards. नेबेंजार्ट्स की वो वजह दोनों से. नेबरजार्ट्स हैं। Sehr gut, नेबेंजार्ट्स की वजह से. और इस जुमले में वर्ब सेकंड पोजीशन पर क्यों है? Warum steht Verb auf Position 2? अरे दोनों हाउसजार्ट्स हैं। House start. Hauptsatz. हाउटजार्ट्स. क्यों हाउटजार्ट्स क्यों है? क्योंकि ये कनेक्टर हाउटजार्ट्स को फॉलो करता है. Then, klar? Sehr gut. Dann, wir sind glücklich, हम खुश हैं. Denn, क्योंकि wir haben Urlaub, हमारी छुट्टियां हैं. Wie sagt man auf Deutsch mit weil? इस जुमले को while से कैसे बनाया जाए? While Wir we are Wir sind Urlaub glücklich, weil Ich haben. bin wir glücklich, Urlaub weil haben. ich habe Urlaub. Weil wir Urlaub haben. Urlaub Sehr haben. gut. Wir gehen früh ins Bett. हम जल्दी सोने जा रहे हैं. Denn, क्योंकि wir sind müde, हम थके हुए हैं. Mit while से कैसे कहा जाएगा? Weil wir müde sind. Gehen früh ins Bett. While we are müde sind. Weil wir müde sind. Sehr gut. Warum lernst du Deutsch? आप जर्मन क्यों सीख रहे हो? Sag uns, हमें बताओ. Wenn jemand Sie fragt, कोई आपसे पूछे, warum lernst du Deutsch? तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो? Dann
hast du viele Gründe. You have a lot of reasons. Zum Beispiel, ich möchte in Deutschland arbeiten. मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ. Ich möchte einen Job finden. मैं जॉब ढूंढना चाहता हूँ. Ich habe eine Prüfung. I have an exam. Oder ich wohne in Deutschland. Aber pass auf, pay attention. Modalverb, Modal Verb. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Kennen Sie Modalverb? Modal Verbs पता है सबको? Sehr gut. Yes, sir. Yes, Yeah. अब mit while के साथ क्या होगा? While ich in Deutschland arbeiten möchte. Mistake. Möchte, na klar. Möchte geht am Ende. जो मिस्टे आपको दिख रहा है ये जुमले में आखिर में चला जाएगा. हर वो वर्ब जो सेकंड पोजीशन पर मौजूद होता है सेकंड पोजीशन पर वो डिस्प्लेस हो जाता है. आबाइटन जो पहले से आखिर में है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, कभी नहीं होगा. Klar. Jetzt, ich frage ihn, मैं अब आपसे पूछता हूँ. Warum lernst du Deutsch? आप जर्मन क्यों सीख रहे हो? Und sag mir, अब आप मुझे बताओ. Und benutzt du immer while? और आप हमेशा while का यूज करोगे. ओके? Sehr gut, zuerst. सबसे पहले Nimra. Nimra, warum lernst du Deutsch? hm? Ich lerne Deutsch, hm. weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Sehr gut, weil du in Deutschland arbeiten möchtest. Sehr gut. Dann Ali Nawaz. Ali Nawaz, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Sehr gut, sehr gut. Hamza, warum lernst du Deutsch, Hamza? ich lerne Deutsch, weil ich mochte in Deutschland arbeiten. In Deutschland arbeiten möchte. Sehr gut, Hamza. Dann Bhavna, Yes. warum lernst du Deutsch, Bhavna? Du kannst auch im Chat schreiben. Okay, hast du im Chat geschrieben? Ich die Deutsch-Ausbildung machen möchte. Sehr gut, sehr gut. Dann Duriab. Duriab, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich einen Job finden möchte. Weil ich Einen Job finden möchte. einen Job finden möchte oder weil ich einen Job finde. क्योंकि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ. Sehr gut. Okay, dann Fatma, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich einen Job finden möchte. Sehr gut, जॉब finden möchte. मिष्टे का यूज आप लोग जब करोगे जब आप ये बताना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ. Ich möchte einen Job finden. मैं जॉब ढूंढना चाहता हूँ. Ich möchte in Deutschland arbeiten. मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ. मिष्टे का मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं when wir Wünsche ausdrucken, when we express our wishes. जब हम अपनी विशेस को एक्सप्रेस करते हैं कि was wir machen möchten, हम क्या करना चाहते हैं. अगर आपको कहना है कि मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, dann sagst du einfach, weil ich einen Job finde. बस, finde. मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्योंकि मैं जर्मनी में पढ़ रहा हूँ. Weil ich in Deutschland studiere. Einfach. Klar. सो मिष्टे का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. आप मिश्टन के बगैर भी जुमला बना सकते हो. ओके, dann Hamza, Tarik. Hamza Tarik, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Sehr gut, sehr gut. Dann Hassan. Hassan, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich eine Prüfung habe. Sehr gut.
weil du eine Prüfung hast. Sehr gut. Dann Fahad. Fahad Bashir, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich gut integrieren möchte. Sehr gut, Fahad. Dann Sabah Javed, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Sehr gut. Dann Saira, warum lernst du Deutsch? Saira oder hm, Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland lebe. Lebe, sehr gut, sehr gut. Sayed Murtaza, warum lernst du Deutsch? Weil ich habe weil ich einen Prüfung habe. Sehr gut. Weil du eine Prüfung hast, ne? Sehr gut. Ja. Okay, Weiß, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich einen Job finden möchte. Einen Job finden möchte. Sehr gut, Weiß. Dann Sishan. Sishan, warum lernst du Deutsch, Sishan? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte. Leben möchte. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Dann lesen wir zusammen. इसको मिलकर करते हैं जल्दी जल्दी. Warum trinken wir? Welche Option passt? कौन सा ऑप्शन ठीक है? Hamza, Duryab, Fatma. Bhavna, du Weil kannst auch im wir Chat Weil schreiben. wir Durst haben. Weil wir Just Durst Durst. haben. Sehr Durst. gut. Carbon. Warum hast du eine Sonnenbrille? Weil es Weil Weil es es sonnig ist. ist. Sonnig ist. sonnig ist. Sehr gut. Warum schlafen wir? Weil wir müde sind. Weil Wir es Nacht müde ist. sind. Weil wir müde sind oder weil es Nacht ist? Beide passen. दोनों ठीक है. Warum gehen wir zum Arzt? हम डॉक्टर के यहाँ क्यों जा रहे हैं? Weil wir krank Weil sind. wir Wir krank krank sind. sind. Sehr gut. Okay, dann machen wir das. gleich इसको करते हैं और जिससे पूछूंगा वो बताएगा ना और देखा से schreiben chat. बाकी जो लोग हैं वो chat में लिखेंगे आंसर्स. आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द चैट. मैं चैट भी देख रहा हूँ साथ साथ. Sie haben eine Frage. आपके पास एक सवाल है. Zum Beispiel, warum lernst du Deutsch? Oder warum lernst du Vokabeln? आप Vokabeln यानी Vocabulary क्यों सीख रहे हो? Und du hast auch einen Grund. You also have a reason. आपके पास एक reason भी है. Zum Beispiel Test haben. आपका एग्जाम है या आपका टेस्ट है. Sagst du immer mit weil. आप हमेशा इसका जवाब दोगे इस सवाल का mit weil का इस्तेमाल करते हुए. ओके. Und gibst du deinen Grund mit weil. और आप अपना रीजन हमेशा weil से दोगे कि आप वोकैबुलरी क्यों सीख रहे हो. ओके. Dann Duryab, warum lernst du Vokabeln? Ich lerne Vokabel, weil ich besser Deutsch sprechen kann. Sehr gut, sehr gut. Aber du hast hier einen Grund, na? आपके पास यहाँ एक रीजन है और du kannst diese Grund Okay. benutzen. आप इस Grund यानी रीजन का इस्तेमाल कर सकते हो. Okay. Weil ich ha Weil ich Test Test habe. habe. Einfach. Normalerweise sagt man अक्सर कैसे कहा जाता है? Ich habe Test. Test. I have a test ना. मेरा टेस्ट है. Ich habe den Test. Aber wegen weil की वजह से ये habe क्या होगा? habe आखिर में आ जाएगा. Ja. Klar? Sehr gut. Dann Hamza, hörst du mich? Hamza, warum gehst du zur Schule? आप स्कूल क्यों जाते हो? Ich
Ich gehe Schule, wi- will, While weil Deutsch lernen. ich Deutsch lerne, क्योंकि मैं जर्मन सीख रहा हूँ। Ich gehe zur Schule, मैं स्कूल जाता हूँ। Weil क्योंकि ich Deutsch lerne, क्योंकि मैं जर्मन सीख रहा हूँ। Sehr gut. Dann Fatma Azad. Warum arbeitest du Ja, sir. heute? Ich arbeite heute, weil Hm, ich Geld brauche. sehr gut. Weil ich Geld brauche. Sehr gut. Because I need money, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है. Sehr gut. Dann Hamza Tariq. Hamza Tariq. Warum kommst du spät? Ich komme spät, Hm, weil ähm, spät, weil ich, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ. weil ich arbeite. Einfach, weil ich arbeite. Einfach. Sehr gut. Dann Hassan. Hassan, warum trinkst du Wasser? तुम पानी क्यों पी रहे हो Hassan? Ich trinke Wasser, hm, weil ich müde bin. müde bin. Du hast einen Grund. Durst haben ना प्यास का होना. Ich trinke Okay. Wasser, मैं पानी पी रहा हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगी है. Weil Ich ich Durst just haben. habe. Sehr gut. Pronounce with me. Hunger haben. Hunger haben का मतलब है भूख का होना. Ich habe Hunger. मुझे भूख लगी है. Durst haben. Durst haben means प्यास का लगना. Ich habe Durst. मुझे प्यास लगी है. Einfach, ना? Simple. Yes. भूख लगना, Hunger haben, प्यास लगना, Durst haben. Okay, wise. Wise hast du noch Frage, कोई question? Hmm, यस सर, जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश में आई एम हंग्री, आई hmm, हैव हंगर, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। तो इसी तरह हंगरी का या थर्स्टी का कैसे डॉइच में होगा, बिल्कुल. या अच्छा कोई सवाल है है, इसका? gute Frage. schreibe ich hier, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर आपके लिए. Hunger ना? Hunger ist ein Nomen. Hunger क्या है? एक noun है. Hunger haben, भूख का होना. Hunger का मतलब है भूख. Okay? भूख. जबकि Durst, Durst ist auch ein Nomen. ये भी एक noun है जिसका मतलब है प्यास. प्यास. Durst haben, प्यास का होना. Aber haben wir auch zwei Adjektive, दो adjective हैं. एक adjective है hungrig. Pronounce with me, hungrig. Hungrig bedeutet भूखा. मैं भूखा हूँ. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig का मतलब है मैं भूखा हूँ. Aber das ist kein Nomen. ये कोई noun नहीं है. Das ist ein Adjective. ये तो एक adjective है जो कि क्वालिटी बताता है किसी भी चीज़ की. मेरी क्वालिटी मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ. और प्यासे को क्या कहा जाएगा? Durst. Durstisch. Pronounce with me. Sorry. Durstisch. Durstisch. Ich bin durstig. मैं प्यासा हूँ. I am thirsty. Aber meistens, ज्यादातर, benutzt man Hunger haben oder Durst haben im Alltagsgespräch. Daily Life Conversation में ज्यादातर Hunger haben और Durst haben यूज किया जाता है. Klar, लेकिन आप hungrig भी कह सकते हो, durstig भी कह सकते हो. Ich bin durstig, ich bin hungrig, einfach. Okay? Wise? Sehr gut. Dann weitergehen. Zishan, warum isst du jetzt? Äh, Hm, ich esse jetzt, hm, weil ich Hunger habe. weil ich Hunger habe. Hunger habe, क्योंकि मुझे भूख लगी है. Sehr gut. Dann
फहद बशीर वाहुम schläfst du früh? तुम जल्दी क्यों सो रहे हो? Ich schlafe froh, weil ich müde bin. Sehr gut. Weil क्योंकि ich müde bin क्योंकि मैं थका हूँ. Sehr gut. Dann सबा जावेद warum gehst du zum Arzt? तुम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? Ich gehe zum Arzt, weil ich krank bin. Weil ich krank bin. Sehr gut. क्योंकि मैं बीमार हूँ. Sehr gut. Dann निम्रा warum lernst du heute viel? आज तुम इतना ज्यादा क्यों पढ़ रही हो? Ich lerne heute viel, weil ich Prüfungen habe. Prüfung habe क्योंकि मेरा एग्जाम है. Oder weil ich morgen eine Prüfung habe क्योंकि कल मेरा एग्जाम है. Einfach, na? Simple. Okay, dann Wise. Warum fährst du mit dem Bus? तुम बस से ट्रैवल क्यों करते हो? Ich fahre mit dem Bus, weil ich keine Auto habe. Kein Auto habe, weil ich kein Auto habe क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है. Sehr gut. Okay, dann कौन रह गया? Heben Sie die Hand, raise your hand. अगर कोई रह गया तो wer möchte antworten? Who would like to answer? Okay, Bhavna, warum bleibst du heute zu Hause? Ich bleibe heute zu Hause, weil ich krank bin. Sehr gut. Weil ich krank bin. क्योंकि मैं बीमार हूँ. Haus नहीं, Hause. Pronounce with me, Hause. Hause. Sehr gut. Okay, dann कौन रह गया? दुरियाब. Warum stehst du früh auf? तुम जल्दी क्यों उठ गई? Ich stehe früh auf, weil ich arbeite bin. Früh auf. मैं जल्दी उठ गई. Weil क्योंकि Ich arbeite. ich arbeite क्योंकि मैं काम कर रही हूँ. मैं जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे काम करना है ना. Sehr gut. Weil ich arbeite. Oder weil ich zur Arbeit gehe क्योंकि मुझे काम पर जाना है. Ja. Sehr gut. Wise. Hast du eine Frage, Wise? कोई question? Yes, sir. जैसे ये वर्ब है स्टे ऑफ, तो ये स्टे पहले लगा और ऑफ आखिर में, क्योंकि ये सेपरेबल हैं या Separable verb, कोई और trennbare वजह? Verben, A1, Lecture 14. Separable verbs, na, अगर trennbare Verben. ओके Wise. ठीक है, सही क्लियर हो गया. Klar, sehr gut. Dann weiter gehen. आगे चलते हैं. हमजा तारिक. Warum gehst du spazieren? तुम वॉक पर क्यों जा रहे हो? Ich gehe spazieren, weil ich frische Luft brauche. Sehr gut. Frische Luft brauche क्योंकि मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत है. Frische Luft कहा जाता है एयर यानी हवा को. Einfach, ne? Sehr gut. Dann Saira. Hörst du mich, Saira? Oder Saira, hörst du mich? Warum lernst du Deutsch Ich online? lerne Deutsch online, weil ich wenig Zeit habe. Wenig Zeit habe क्योंकि मेरे पास वक्त कम है. Ich lerne Deutsch online. मैं ऑनलाइन जर्मन सीखती हूँ. Weil ich wenig Zeit habe क्योंकि मेरे पास कम वक्त है.
Sehr gut. Wenig means less. Wenig का मतलब होता है less यानी कम. Sehr Yes. gut. Okay, Murtaza. Murtaza, hier ist Umesh. Warum kommst du heute nicht? तुम आज क्यों नहीं आए? Murtaza. Ja, ich komme heute, ich komme nicht, ich komme nicht heute, weil ich Termin habe. Sehr gut, weil ich einen Termin habe. क्योंकि मेरा Termin यानी appointment है. Sehr gut. Wise. Hast du eine Frage, Wise? कोई question? यस सर, ये विनिश थोड़े के लिए या लेस के लिए यूज होता है, तो विनेगर एक वर्ड है, वो उसकी प्रोनाउंसिएशन पे विनेगर क्यों हो जाती है? वो भी Weniger. जैसे होता है use होता है। less, lesser, comparative. वैसे ही होता है wenig, weniger. Na, comparative degree. Comparative degree comparativ lernen wir im Lektion 6. इंशाल्लाह comparatives को लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि ये वेनिश क्या होता है और वेनिगा क्या होता है. क्ला वाइज और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है इसी बिल्कुल. वजह से। प्रोनाउंसिएशन तो इसीलिए चेंज हो जाती है बिकॉज अगर तो जी आखिर में है किसी भी जुमले के आई और जी तो इसको शीन से पढ़ा जाता है. जैसे स्वांसिश ना स्वांसिश. लेकिन अगर इस जी के बाद भी कुछ आ जाए कोई और अल्फ़ाबेट आ जाए तो फिर इस जी की प्रोनाउंसिएशन शीन से नहीं होती, फिर इसको वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है जी की तरह. Klar? ओके, यस, थैंक यू। Sehr gut, Saira. Hast du noch Frage, Saira? कोई question? सर यहाँ पे हॉटे के बाद क्यों निश्त आया, इससे पहले क्यों नहीं आया? heute एक एडवर्ब है और नॉर्मली वर्ब्स में एडवर्ब के बाद निश्त आता है. ओके, मैं आप लोगों के सर साथ पीछे निश्त की जितना भी पोजीशंस, किया है उसमें निश्त पहले आता है, लाइक क्योंकि हॉटे उसमें से। एडवर्ब नहीं था, उसमें एडवर्ब नहीं था. ओके, एडवर्ब अगर आ जाए जुमले में तो एडवर्ब वर्ब के फौरन बाद आता है और निश्त उसके बाद आता है. ओके, मैं आप लोगों के साथ निश्त की जो पोजीशंस हैं वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह. अभी ग्रुप पे मुझे याद दिला दिएगा या फिर आप लेसन नंबर 5A1 का वो एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा आप लोग. उसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखा था निश्त की पोजीशंस को. ओके, dann Hamza. Hamza Tariq, hast du noch Frage, कोई क्वेश्चन? यस सर, ये प्रोनाउंसिएशन पे पूछना था आपसे। जब मैं मैक्लेनबर्ग फोपोमन वाली साइड पे था तो तब वहाँ पे ये स्वानसिश, द्राइसिश, वेनिश कह रहे थे। अभी मैं इस वक्त बवेरिया में हूँ तो यहाँ पे स्वानसिक, द्राइसिक, वेनिक। तो ये कोई रूल है या बस ये रूल नहीं है स्टेट्स के ऊपर हमजा. डिपेंड? एक्चुअली बवेरिया जर्मनी का सॉर्थन जूट डॉइचलैंड है जो कि ऑस्ट्रिया से लगता है. तो ऑस्ट्रिया में भी जर्मन बोली जाती है, लेकिन जो ऑस्ट्रियन डायलेक्ट है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है जर्मन के मुकाबले में ना. वो लोग आर को गैन से नहीं पढ़ते बल्कि आर को आर से ही पढ़ते हैं. जैसे वो कहते हैं आर जी बाइटन सही। ना. तो वो एक्चुअली जी जो ऑस्ट्रिया का डायलेक्ट है वो थोड़ा साउथ जर्मनी के लोगों में भी आ गया है. तो जो बवेरिया साइड पे वो लोग जर्मन डायलेक्ट के बजाय ऑस्ट्रियन डायलेक्ट को प्रेफर करते हैं. तो आप यूज़ कर सकते हो, स्वांसिक भी कह सकते हो, वेनिक भी कह सकते हो, लेकिन वो जर्मन नेटिव डायलेक्ट नहीं है, याद रखना. वो ऑस्ट्रियन डायलेक्ट है. अगर तो आप उस रीजन में रहते हो तो ठीक है, आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज es ist besser Wenig zu sprechen, Swansisch zu sprechen. Swansisch कहना, Wenig कहना ये ज़्यादा बेहतर है. ओके, ठीक। और अगर मैं मतलब फेनिक और ये स्वानसिक कहूँ पेपर मतलब प्रूफिंग के वक्त, कोई तो मसला इसमें भी नहीं है. कोई इशू नहीं या नहीं, इस कोई पे इशू नहीं है. डायलेक्ट देखते हैं? कोई इशू नहीं है. ठीक। बिकॉज डायलेक्ट किसी भी ज़बान के मुख्तलिफ हो सकते हैं. पाकिस्तान में भी आप देखें उर्दू बोलने का जो डायलेक्ट है वो रीजन्स के हिसाब से वेरी करता है ना. बिल्कुल ऐसे ही हर ठीक हो। रीजन में ऐसा होता है. ओके, गुड. डन. weiter gehen. आगे चलते हैं. Haben wir auch viele Übungen और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं. Aber
erledigen Sie alle Übungen zu Hause। इन सब एक्सरसाइजेस को लाजमी घर से किएगा और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपने होमवर्क्स को लाजमी शेयर किएगा, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लासेस होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आज की क्लास के बाद एक हफ्ते के लिए सब गायब हो जाए, ऐसा नहीं है। Machen Sie alle Aufgaben zu Hause, इन सब होमवर्क्स को घर से किया करें। und teilen Sie Ihre Aufgaben auf WhatsApp ग्रुप। अपने जितने भी होमवर्क्स हैं उन सब को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लाजमी शेयर किया करें। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं वो सब लेक्चर पीडीएफ में मौजूद होती हैं। Sie haben auch viele Antworten, और आपके पास Antworten यानी आंसर्स भी होते हैं उन एक्सरसाइजेज के। ओके, सो दैट यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स। आप अपने आंसर्स को या अपनी एक्सरसाइजेज को चेक भी कर सकते हो। क्ला सर हम तो फातिमा, अभी A1 ही पूरा कर रहे हैं ताकि इस लेवल पे A2 के लेवल पे पहुंचे, क्योंकि पहले जहाँ से A1 किया वो इसके साथ बहुत ही मैच कर रहा है। बिल्कुल। A1 जो है बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जी A1 की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो A2 पढ़ने में आपको A2 काफ़ी चैलेंजिंग होता है आपके लिए। तो आप कोशिश करो आप लोग कि A1 के जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनमें जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर करो वहाँ से, और अपने A1 के टॉपिक्स को बेहतर करो ताकि A2 पढ़ने में मज़ा आए। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो A1 से हैं, हम सब ने A1 किया था साथ में, तो उनको कभी कोई मुश्किल नहीं होती इन सब चीज़ों में, बिकॉज उनको पता है हमने कितनी डिटेल में A1 में चीज़ों को कवर किया था। ओके डन। फातिमा, hast du noch सर Frage, मुझे कोई आपसे ये क्वेश्चन? पूछना था कि मैं A2 जो है ना पेपर देना चाहूंगी इस दफा भी ना, तो मुझे ये पूछना है कि मैं होगन की प्रैक्टिस कहाँ से करूँ ह्यूगन के लिए मैं ग्रुप के या ऊपर आप आपके साथ शेयर करवाएंगे? कर दूंगा। ह्यूगन के लिए जो ह्यूगन की एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, डेली उसकी प्रैक्टिस डन करें सर। थोड़ी बहुत। और क्ला सर आप हमें सजेस्ट करेंगे कि अभी से यूट्यूब में जो लाइक उन्होंने हमें दिए होते हैं ना गोचो के पेपर्स वगैरह, तो वो अभी से फिल करना शुरू कर दें या अभी हम वेट करें बिल्कुल, आप चाहें तो प्रैक्टिस अभी के से लिए? प्रैक्टिस करना शुरू कर दें पास पेपर्स की। A2 की ड्राइव जो है गूगल ड्राइव, उसके अंदर भी गोइथे के या OST के पास पेपर्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं और अपने होमवर्क्स को करके ग्रुप के ऊपर शेयर करें। कोई भी इसमें गलती होगी तो मैं इंशाल्लाह चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। सर वन लास्ट क्वेश्चन, इस जो आप पढ़ा रही हैं A2 का सारा सेशन जब कंप्लीट होगा तो आप हमसे प्रूफ लेंगे? प्रूफिंग एक्चुअली होता नहीं है, आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, आप इनको सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक शेयर करता हूँ एट द एंड ऑफ द सेशंस। तो आप उस ऑनलाइन टेस्ट को देते हैं और उसके बाद यू विल गेट योर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, आपको जर्मन की सर आप कहते हैं सर्टिफिकेशन मिल कि ना जाती है। होमवर्क जो है ना, सॉरी सर, आप कहते हैं कि होमवर्क ना अपलोड करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ये तो ऑलरेडी सोल्व होता है। ये कहाँ ऑलरेडी सॉल्व होता है? ये जो एक्सरसाइज आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही है फातिमा, ये तो जी अनसॉल्व्ड है। नहीं, तो इसके साथ है ना, नीचे इसकी सोल्व मौजूद है ना? ये जो आंसर्स मौजूद हैं, जी जी। बिल्कुल, तो आंसर्स तो आप लोगों की आसानी के लिए होते हैं। तो ग्रुप के ऊपर ओके होमवर्क इसीलिए शेयर करने को कहता हूँ मैं, ताकि मुझे पता रहे कि कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बिकॉज ओके। सिर्फ सेशंस लेने से आपकी जर्मन बेहतर नहीं होगी। यू हैव टू डू होमवर्क्स, आपको होमवर्क्स करने पड़ेंगे, आपको स्पीकिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा लाजमी। जब मैं स्पीकिंग के लिए रूम्स यस सर। बनाता हूँ तो आधी आवाम तो वैसे ही गायब हो जाती है, तो फिर बाद में शिकायत करते हैं कि हमने B1 तक जर्मन कर ली लेकिन हमसे जर्मन बोली नहीं जाती। तो यही वजह है जर्मन नहीं बोली जाती, बिकॉज आप लोग होमवर्क्स नहीं करते हैं, आप लोग स्पीकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप सिर्फ समझते हैं कि हफ्ते में 2 घंटे का सेशन ले लें वो हमारे लिए काफ़ी होगा, ऐसा नहीं है। Das ist nicht genug. Sie müssen यस सर। Hausaufgaben machen, Sie müssen in einer Sprechübung teilnehmen, na? Klar? यस सर। या Okay.